Yes. So, किसने magic mirror practice की exactly as it was told, and what did they feel? Hi, Dee. Good Hi. afternoon. Good afternoon. I did my practices. I told so many things about myself looking at the mirror. I was laughing. I was feeling like on the top of the world. और मैं खुद ही हंस रही थी. बाथरूम से बाहर निकल के भी हंसी जा रही थी. Just went for a इतने दिन से हेयर स्पा के लिए मन में था कि नहीं, I'll go for a facial, I'll go for a hair spa. But because of the situation, I wasn't able to. But आज तो मैं finally चली गई and I got my hair spa done. Okay. Wow. Very Yeah. nice. So happy. Yeah. Put it in my chums, so got it done. So relaxed. Great. Done. मजा Very nice. मजा आ गया, right? Yes, just loved myself. Pampering yourself is the biggest fun. बिल्कुल. Yes. और बताओ, who else did what? मिरर में देखकर बोल पाए 3 things to be grateful for. ज्यादा बोल दिया. Yes, I was also about to say कि 3 से ज्यादा निकल, और मतलब कि एक अजीब सी खुशी हो रही थी, और सच में as वर्षा mentioned laughing, मतलब हंसी भी बहुत आई थी. So it was a very nice and different feeling. Yes. At first तो अपने आप से नजर मिलाने में थोड़ी हिचक हो रही थी, like shy feel हो रहे थे. Then एक दो बोलने के बाद, नहीं तो मिरर में अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहे थे फर्स्ट टाइम में. Yes. ये भी होता है. Yes, बिल्कुल. But finally, yeah. But finally हो गया. हाँ. Yes. And as earlier I told you, जो भी chapter आता है उससे 1-2 दिन पहले कुछ connect हो जाता है. Day before yesterday only me and भाभी जी all did facial, waxing, everything. मेरे को पता भी नहीं था magical mirror आने वाला था, but we were already ready for to show the face in the mirror. ourselves earlier. It's a very coincidence कि ऐसा हो रहा है कि जो चैप्टर आता है उससे प्रीवियसली कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर हो रहा है दी. Okay. Wow. बहुत अच्छा and very nice. Keep it And up. today I'm getting cues since morning कि मेरी 25th is going to be grand. Wow. Obviously, it's going to be grand and it's going to be a huge success. And Yes. what different and special. बहुत कुछ होगा. आज सुबह से क्यों मिल रही है? It has been a wonderful day. Yes. Wow. Yes. This I have noticed, when you are in this gratitude zone में आप रहते हो, and your birthdays, your anniversaries, कुछ ना कुछ वो एक different magic रहता ही है उसमें. Yes. Okay. इंदिरा जी आपने किया? या Okay. भाई वहीं से नजरें नहीं मिला पा रहे थे फर्स्ट टाइम. सेम टू सेम. Okay. कभी कोशिश ही नहीं की नजरें मिलाने की. कल फर्स्ट टाइम किया. हाँ, तो देखिए वो मिरर कितना नाराज था आपसे. वो बोला ये मुझसे नजरें ही नहीं मिलाती है. सही है. चलो आज तो आई. यस. ओके. और कोई शेयर करना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून. कैसे हो आप? यस, आई एम वंडरफुल. बारिश का मजा ले रहे हैं अभी हम. ओके. यस, कलकत्ता में अभी लॉट्स ऑफ बारिश. 42 दिखता है सामने से और इधर से दिखती है न्यू ब्रिज. मस्त लगता है. वाओ, अमेजिंग. वेरी नाइस. न्यू एंड ओल्ड दोनों ही दिखता है. पुराना ब्रिज भी दिखता है वो हाफ, लेकिन न्यू ब्रिज पूरा. ओके. और गंगा तो खैर मॉर्निंग में उठते ही दर्शन होते हैं. यस. गुड गुड. यस. और कोई शेयर करना चाहते हैं? मैजिक मिरर किसी ने किया एंड व्हाट डिड दे फील? Good afternoon, Di.
Good afternoon. आज कुछ तो अलग ही फील हो रहा है, अंदर से बहुत ज्यादा खुशी फील मतलब महसूस कर रहे हैं हम लोग आज। ओके, तो ये फीलिंग सिर्फ आज के लिए छोड़नी नहीं है. It was not for one day. नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू रहेगी अभी ये। Yes. मतलब अगर इतना मजा आया, इतनी खुशी मिली, तो हम उसको क्यों, why will be restricted to just one day? We'll keep on doing it. Yeah. Okay, Di, just you all have to promise me that you people won't laugh. ठीक है, we won't laugh. Paka na? पक्का. So I have a 3-view mirror in my bedroom. अच्छा. There are 2 small and 1 big. So I Hmm. just hugged myself. So, you can see 6 faces. It's a Acha. 3-view mirror. So everybody, it was looking like everybody was hugging each other. So I myself was hugging to myself in the mirror, and then we kissed each other. It was such a wonderful feeling. I was like, yaar, ye moment yahi tham jana chahiye. And I just was like, and then I just laughed like anything in this world. So nice, so nice. See, we are not laughing you in that way. It was really so nice. बहुत अच्छा. And kabhi, if you people also have, if you have never tried, you can just try to hug yourself. But बहुत मजा आता है. मतलब it's a very different feeling. करके दिखाओ. Yeah, it's a very different feeling. करके जितना अपने दिखाओ. हस्बैंड से हक करके मजा नहीं आया उतना मुझे अपने आप से हक नहीं, योगा में भी डू एट द एंड, जब हम प्रेयर करते हैं उसके बाद हम ऐसे अपने आप को हक करते हैं, तो आई डू Yes. Yes, बिल्कुल. मतलब each of one can hug themselves every day, है ना? Yes. Okay. चलिए, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करें. Who wants to read? Yes, it is day 28. Remember the magic. Magic को याद रखना है. It is the last chapter, and then tomorrow is the conclusion. That's all. So as we can see in the picture अगर सबको साफ दिख रही है, रात में moon है, there is a full moon and there are lots of stars, and you can see नीचे में जो water body है ना, it has got a long reflection of the moon. बहुत long reflection है. इनकी ना हर picture के पीछे भी कुछ ना कुछ puzzle होता है, and we can only decode. We don't know for sure what she wants to say, but we can try to decode. अगर चाहते तो एक छोटा सा reflection भी दिखा सकते थे कि हाँ बस it is visible, but क्यों पूरा वो दूर तक as if कि पूरा दूर तक उसकी light आई है नीचे. So this, I think, according to me, I don't know, according to me, it's the moon is magical. If suppose we see that moon is magic, if we compare magic to the moon, and we can see that its reflection, वो कहाँ से कहाँ तक it is going, and it's मतलब spreading. It's like a long reflection. So it's similar, मतलब हमारी भी life में, since now we have received magic, we know that what is magic, हमने उसको embrace कर लिया है, we know it, and अब क्या होगा? Now what will happen? It will always keep reflecting in our lives. ऐसा नहीं होगा कि एक बार किया and it vanishes, कभी नहीं होगा. So we have to keep trying. इसका reflection is always maintained in this way, that it is having a what do you say, huge deep impact in our lives. Okay. बिना माउस के बड़ा समस्या. Yes, who is reading? Can I read, Shweta? Yes, please. Yeah, thank you. Dee, can I read? कौन बोला? I cannot see. श्वेता जी बोल रहे हैं इधर. No, it's not me. नहीं, श्वेता जी wants to read. Yeah, I'll read. Yeah, it's okay. Yeah.
That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lint, 1951, writer and Celtic folk musician. Yes, so this person he is saying that magic के साथ ऐसा ही होता है ना? It's this is the thing with magic कि आप सोचते रह जाओगे कि है कि नहीं पता नहीं मेरे साथ कब होगा, उसके साथ तो हो रहा है, उसने अपनी मैजिक शेयरिंग की, और व्हाट अबाउट मी? मैंने आज तक अभी कुछ मैजिक फील नहीं किया है, ऐसा कुछ आई डोंट फील कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मैजिक हियर. But you have to just believe it. You have to just know that it's still there. It's around you. Okay. Otherwise, it just stays invisible for you. वो आपके लिए इनविजिबल ही रहेगा. अगर इफ यू हैव सीन दैट हैरी पॉटर की मूवी अगर आपने देखी है, इफ यू हैव सीन, मतलब वो जो पिलर्स में उनका वो मतलब बाकी सबके लिए इट्स अ स्टेशन, इट्स अ ट्रेन स्टेशन है, बाकी सबके लिए इट्स नॉर्मल कि स्टेशन है, एवरीवन इज कमिंग, कोई ट्रेन में जा रहे हैं, कोई किसी को छोड़ने आया है. बट फॉर दोज मैजिकल पीपल, जो वो मैजिकल पीपल थे जो हॉगवर्ट्स जा रहे थे मैजिक सीखने के लिए, उनके लिए वो जो एक पिलर था उसके अंदर उनका जाने का रास्ता था. इट वॉज देयर कोर्ट की, जो भी उसको बोलते हैं ना, whatever it was there, तो वो उनका रास्ता था, किसी और के लिए नहीं था. It was for them because they could see it. So it will become invisible for us also as long as we don't believe in it. But if we know it's there, होता ही होता है हमारे आसपास है, तो it will be visible for us. Yes, continue. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing process to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. Yes. So what is she saying? Obviously, every day is unique. There is no day like any other day. अगर आपको लगता है कि आपके तो रोज मतलब सपोज रोज एक सा ही दिन जा रहा है, आज भी सेम था, कल भी सेम था, परसों भी सेम था, आज मतलब कल भी सेम होगा, nothing new under the moon, nothing different. वही उठते हैं, वही everything is fixed. But it is not possible. You didn't have the same breakfast every day. Did you wear the same clothes every day? आपने रोज मतलब सेम जो कल पहना वही आज पहन लिया, जो कल खाया वही आज खा लिया, एग्जैक्टली जो जिस टाइम पर किया वही आज कर लिया. इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं होता है. कुछ न कुछ डिफरेंस होता ही होता है, बिकॉज एवरी डे इज यूनिक. एवरी कोई भी 2 days कैनॉट बी एग्जैक्टली सेम कि एग्जैक्ट उतना बजे उठे, एग्जैक्ट उतना बजे ये किया, उसके बाद एग्जैक्ट दिस दैट. इट इज नॉट पॉसिबल. Okay, and because they are always changing. So when we are counting the blessings of the previous day, हमने अगर पहले दिन के हर रोज we are counting the blessings. So कहाँ गया? No matter how many times we do it, it will be different every time. अगर आप बोलोगे कि मैं अगर सपोज जो अभी कल बीता उसकी मैं ब्लेसिंग्स काउंट करूं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आज का भी वही होगा, परसों का भी वही होगा. नो, इट विल बी नॉट, है ना. शायद किसी ने शायद चाय बहुत अच्छी थी, शायद नाश्ता में ये चीज बहुत अच्छा था, शायद कुछ कपड़े जो हमने पहने, या किसी ने फेशियल कराया, किसी ने कुछ कराया, कोई घूमने गया, किसी ने मिरर में कुछ किया. एवरीथिंग वाज डिफरेंट. यस. एंड नो मैटर, मतलब हमारे जितने भी जो भी डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, एवरीथिंग इज फाइन. बट दिस जो आज की प्रैक्टिस है ना, रिमेम्बर द मैजिक, ये हमारे साथ इंटायर लाइफ रहेगी. इसमें ऐसा कुछ भी अलग ये वो नथिंग इज देयर, एंड इट्स वेरी सिंपल बट वेरी वेरी पावरफुल.
Yes, let's see what we have to do. Yeah. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. Yes. तो क्या करना है, सपोज जैसे मैजिक रॉक में हम लोग रात में करते हैं ना, जब रात में वी आर डूइंग द मैजिक रॉक, तो वी आर डूइंग द बेसिकली द सेम थिंग वी आर डूइंग, कि हमने मॉर्निंग से एवरीथिंग वी आर थिंकिंग कि क्या क्या अच्छा हुआ, दिस दैट ये वो, पूरा हमने रात तक का सोचा, एंड देन वी थिंक अबाउट द बेस्ट थिंग जो हुआ, एंड उसके लिए हम थैंक कर देते हैं, एंड देन वी स्लीप. बट इसमें क्या करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू आर राइटिंग द ब्लेसिंग्स, then you are going through the previous day and you are doing the exact same thing. आप पूरा मतलब previous day का everything you are thinking ये, but what is the difference, कि you are writing all those blessings. You are not focusing on just one of them and not just mentally saying, but you are writing each, मतलब पहले दिन का हर एक ऐसा blessing जो आपको याद है. ओके, एवरीथिंग, मतलब एंड यू हैव टू जस्ट स्कैन. ऐसा नहीं आपको बहुत डीप, अरे मतलब हाँ मेडिटेट करना है, ऐसा कुछ भी. यू जस्ट हैव टू स्कैन, ऑटोमेटिकली दे विल बबल ऑन द सरफेस. सपोज वी हैव एवर वॉश्ड क्लोथ्स, तो हम लोग अगर पानी में सर्फ डालते हैं तो हमको नीचे तक जाकर उसको हिलाना पड़ता है बबल्स के लिए, कि खाली ऊपर ऊपर हिलाने से बबल्स आ जाए? नीचे तक हिलाना पड़ता है. नीचे तक हिलाना पड़ता है. नहीं, ऊपर पे ही आ जाता है जरा ऊपर ही सा. करना पड़ेगा ना. ऊपर करने से आ जाता है. यस, ऊपर करने से ही यू विल सी कि वो धीरे धीरे दैट इज रिवॉल्विंग एंड द बबल्स आर कमिंग ऑन द सरफेस इटसेल्फ. वी डोंट हैव टू गो टू दैट गेट द बबल्स. या तो सिमिलरली आप लोगों को सिर्फ स्कैन, वी हैव टू जस्ट स्कैन यस्टरडे. हाँ, इस फ्रेंड से बात हुई थी, या फिर हाँ साथ में टीवी देखा था कुछ, अच्छा मूवीज था. देन मे बी किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया था. अभी आएगा, बहुत सारा एग्जांपल्स आएगा कि व्हाट कैन बी yesterday's blessings. Yes, Shweta ji, continue. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you have not heard from in a long time? Did something do magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you have excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? तो जस्ट सी सो मेनी एग्जांपल्स. मतलब कुछ भी हो सकता है जो आपको नहीं मालूम है कि कल का दिन नॉर्मल था. यू डोंट नो कि कल का दिन नॉर्मल था, आज भी वही है, कल भी वही है. नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन हैपन. किसी ने आपको जस्ट ऐसा कुछ बोला दैट मेड यू हैप्पी. आप सपोज यू हेल्प समवन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ देयर्स. जैसे अभी है ना, अनुषा जी ने के यहाँ पर किसी ने अपना वो क्या दे दिया था, बर्ड. यस यस यस, किसी ने कुछ दे दिया, किसी से कोई फोन में बात हुई एंड किसी ने कोई टिप दे दी कि हाँ यहाँ पर फोन कर लो एंड यू विल गेट अ गुड मेड.
आपको अच्छी मेड मिल जाएगी, या फिर जस्ट ऐसे ही बात कर रहे थे, ये वाला शैम्पू इज वेरी नाइस, यू मस्ट यूज इट। खाली एक सिंपल, इट इज जस्ट सो सिंपल। कोई जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी चीजें कि बहुत बड़ा कुछ मिरेकल हुआ था, बहुत बड़ा ड्रीम वो हो गया था अचीव। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो जस्ट स्कैन थ्रू द सरफेस, कुछ भी छोटी छोटी कुछ भी चीज, मतलब जैसे मैं तो अभी मैंने कहा ना कि बिहार में हूँ, तो अगर मैं याद करूं तो कितनी कितनी मतलब चीजें हो रही हैं कल से। रात में हम लोग 2 बजे तक ताश खेल रहे थे, सारे बच्चे, सारे बड़े, इतना बड़ा एक ग्रुप बनाकर, एंड फाइटिंग एंड यू नो आर्ग्यूइंग एंड लाफिंग एंड डूइंग ऑल पागलपंती। तो आई थिंक कल का तो खैर बहुत कुछ है, बट अगर नॉर्मल हम अपने घर में भी रहते हैं अगर, तो नॉर्मल भी घर में बहुत चीजें हो सकती, एनीथिंग। तो we have to just see and what was the yesterday's blessings. Yes, continue. Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. Yes, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे ढूंढने हैं। इट्स नॉट कि 20 चाहिए, बहुत सारे ढूंढूं, कहाँ से ढूंढूं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है? जितना भी आपको याद आ रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट कि कितना ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो आप एक एक ब्लेसिंग के बारे में, जस्ट दैट। एंड जैसे जैसे आपको याद आता जाए, यू हैव टू नोट इट डाउन, सिंपली बी ग्रेटफुल एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। वेरी सिंपल, ओके। तो इसको मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, तो आई तो डू व्हाट कि मैं क्या करती हूँ, जैसे मॉर्निंग में मैं जब ब्लेसिंग्स लिखती हूँ, तो उसी समय ना कुछ जनरल ब्लेसिंग्स लिख लेते हैं, ऑब्वियसली जो हमारे होते हैं इन जनरल ब्लेसिंग्स, एंड कुछ ऑलवेज प्रीवियस डे से होते हैं। प्रीवियस डे में किसी ने भी कुछ भी हुआ मेरे साथ अच्छा, मैं अपने वो रोज की ब्लेसिंग्स में ऐड कर लेती हूँ। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट ठीक है 10 की जगह 11, 12 या 13 हो जाते हैं, बट वो उसी के अंदर इंक्लूड खत्म हो जाता है। उसके लिए मुझे अलग से वापस रिमेम्बर द मैजिक की प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। तो दिस इज व्हाट आई डू, एंड ये आप लोगों की मर्जी है, यू वांट टू इंक्लूड इन दैट, you want to do a separate one, that is all upon you. Yes. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. नहीं, मतलब डिटेल लिस्ट में मतलब वाई तो आना ही है। आप चाहे कितना भी शॉर्ट में लिख रहे हो, बट बिकॉज आना ही चाहिए। इट इज नॉट कि यू कैन राइट जस्ट थैंक यू दिस, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दिस, नहीं। आई एम ग्रेटफुल टू दैट बिकॉज, जैसे हम मॉर्निंग की ब्लेसिंग लिखते हैं, एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्मेट, you cannot change the format. Yes, continue. There is no set number of blessings to find. Next page. Yeah. एक मिनट। To find, किधर गया? क्या हुआ? From Not yesterday. getting the page. अच्छा, मैं वापस, there is Yeah, no back. set number of blessings to find from yesterday. Did you To get? find, receive or accomplish. नहीं नहीं. Oh, from yesterday. Yes, from yesterday. From yesterday. From yesterday, because every day is different.
but I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. देखो होता क्या है, मैं इसकी लॉजिक समझा देती हूँ कि जैसे आज हम लोग, अब शुरू से तो वी डिड नॉट नो कि हम लोगों को ग्रेटिट्यूड लिखना है, ऐसा तो हम लोगों को किसी ने बताया भी नहीं था, एंड वी डिड नॉट नो। तो पहले के ना बहुत सारे गड्ढे बाकी हैं जिनको अभी हम आज कवर कर रहे हैं। वी आर कवरिंग दैट, है ना, इस टीचर को, उसको, हमारे जितने भी पहले के जितने जितने लोगों से हम जुड़े थे, सबको हम आज कवर अप कर रहे हैं। बट आज के बाद हम क्यों उनको कवर अप करने की दरकार ही क्या है? मतलब वो गड्ढे हम छोड़ेंगे ही क्यों? वी विल नॉट लेट एनी पिट्स, एनी गड्ढे जिनको हमको बाद में कवर अप करना पड़े। क्यों? जैसे जैसे जो होता जाएगा हमारे साथ, कोई भी तरह का चॉकलेट्स, मीठा, ये सब एकदम बंद कर दो। किसको है? कौन म्यूट अनम्यूट है भाई? एवरीवन ओ प्लीज खाओ। म्यूट योरसेल्फ। श्वेता जी आप अनम्यूट रह सकते। यस, कल यहाँ पर कोई शॉपिंग कर रहा था, आज कोई डाइटिंग का बता रहा है। चलो ओके। यस, व्हाट वाज आई सेइंग कि हाँ, मैं बोल रही थी कि हम लोगों को आज के बाद गड्ढे छोड़ने ही नहीं है कि उनको कवर करना पड़े। जैसे जैसे कुछ भी किसी ने हमारे साथ कुछ भी अच्छा हुआ, इमीडिएटली नेक्स्ट डे उसकी ब्लेसिंग्स लिखकर उसको कवर, मतलब दैट पोर्शन इज कवर्ड विथ योर ग्रैटिट्यूड। हिसाब खत्म, वहां पर कोई गड्ढा रहा ही नहीं बाकी। ओके, तो बाद के लिए हम लोगों के ऐसा नहीं रहेगा पेंडिंग ग्रैटिट्यूड्स, देयर इज नो पेंडिंग लिस्ट। तो आज से वी कैन डू जस्ट दैट, जो इमीडिएटली, मैं तो मतलब इमीडिएटली मैं याद करती रहती हूँ कि हाँ इसने मुझे कॉल करके ये बोला था, कोई नया ट्यूशन मिला उसको देना है, किसी से मैंने कुछ खरीदा, कॉम्प्लेक्स में आई स्टे इन किसी ने किसी से कुछ खरीदा, उसने घर पर डिलीवरी दे दी, इमीडिएटली उसको करना है। मैंने कुछ स्टिच करवाया, कोई कुर्तीज एंड ऑल स्टिच करवाई, जैसी जिस दिन डिलीवरी आई उसकी, उसके नेक्स्ट दिन वो मेरी ब्लेसिंग्स में आएगा ही आएगा। thank you for Radha Bhabhi because she delivered my kurtis and they are excellently stitched, covered. That portion is now covered with my gratitude. अब मैं बाद में उनको याद करूंगी फिर दूंगी, why? है ना, तो प्रीवियस डे के जो चीजें होते हैं हम उनको कवर करते रहते हैं, क्योंकि आज के पहले तो जो थे हम कर ही रहे हैं उनको, जनरल ब्लेसिंग्स वी आर गिविंग। उसके बाद रिमेम्बर द मैजिक प्रैक्टिस में इट्स जस्ट ओनली प्रीवियस डेज ब्लेसिंग्स। यस, कंटिन्यू। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken away from him or her. Remember the magic, it was created for you. So Remember the magic, it was created for you. If you remember this quotation, whoever has gratitude, तो ये कौन से चैप्टर में आया था? Which chapter did? First, yes, it came in the first chapter. Okay, in the introduction. And now, and now in the last chapter also, it is ending with the same quotation. Whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. जिसके पास gratitude नहीं है, even what he or she has will be taken from him or her. That means we have just completed a circle. हमने सारे अपने aspects cover करके what we have done, we have पूरा completed a circle, and now we have done पूरा gratitude का सर्कल कंप्लीट कर लिया हमने अपने हेल्थ में, अपने जॉब में, अपने करियर में, एवरीडे लाइफ में, फूड एंड वाटर में, है ना, एवरीथिंग, मैजिकल पीपल में, रिलेशनशिप्स में, एवरीवेयर मनी में, हमने सब एरिया में वी लर्नड हाउ टू गिव ग्रैटिट्यूड, एंड टुडे we completed the circle by again coming
मतलब प्रीवियस डे के हर चीज को आप कवर करते जा रहे हो, तो आपके कोई भी ब्लेसिंग्स ग्रैटिट्यूड पेंडिंग होंगे ही नहीं। एंड इन जनरल रिलेशनशिप्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, है ना, फैमिलीज के लिए, हम लोगों को वो कंटिन्यूड ग्रैटिट्यूड जनरल वाले भी लिखते रहने पड़ेंगे। यस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 28। Remember the magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. So congratulations everyone. We have written 280 blessings abhi tak. Yes. Next. Number 2, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Yes. जब तक आपको satisfaction नहीं हो ना, तब तक आप लिख लेना. Yes. Number 3, as you remember each one, simply say the magic words, thank you, for it is in your mind. Number 4, after today, you can do this practice as a written list or out loud in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. Yes. तो Number ये खाली कल की प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए उन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि आफ्टर टुडे you can do it as a written practice or out loud in your mind. But नहीं, हम लोग तो written में believe करते हैं, है ना. It is saying out loud, but मैंने तो उसका और आप लोगों को shortcut बता दिया है. I'm a very shortcut person. हाँ, but करती सब कुछ हूँ, but इतना detail नहीं. तो as everyone, तो आपकी जो general blessings है, उसी में हम remember the magic वाली blessings को add कर देंगे. Yes. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So I hope this is clear. आज हम लोग है ना, because ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, Remember the Magic, तो थोड़ा सा हम लोग कल का भी आज पढ़ेंगे. नहीं तो वो लास्ट डे वो इतना बड़ा हो जाता है एंड देन मतलब वो बहुत वो it is very difficult. तो थोड़ा सा just a bit of portion we will read for tomorrow also. Your magical future. Okay. Yes. Thank you, Dee. Thank you, Shweta. Yeah. You can read आगे पढ़ो. Yeah, I can continue. Okay, anyone else can continue? Who was that? Can I? जो भी आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हो, you can continue. कोई अगर new people है जिन्होंने आज तक read नहीं किया है and they want to read, you are welcome. Otherwise, yeah, anyone can read. So who is reading? मैं पढ़ूं? सरिता. Sarita ji. अच्छा, okay. Yes. Thank you. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there's no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. Yes, like the stars in the universe, it is infinite. मतलब आपने ना, जब हमने ये बुक की है, we have done all these 28 days. हमारी फाउंडेशन तो स्टार्ट हो चुकी है, obviously. We have built a foundation and with the tool of gratitude. Gratitude एक just tool है हमारा, ठीक है. हमें पहुंचना कहाँ है? हमारे ड्रीम्स तक. तो बीच का जरिया, बीच का टूल जो है, दैट इज ग्रैटिट्यूड. और एक प्रैक्टिस है, एक साइंस है, दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एक साइंस है, इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट? टू एक्सेस आवर ड्रीम्स, टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। ये हमारी एक लाइफ की जर्नी होती है, और वो ड्रीम्स कुछ भी हो सकते हैं। इट इज नॉट कि बहुत जरूरी है आपको सोना चांदी हीरे मतलब बहुत ये सब चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। जो भी आपका ड्रीम्स है, जो भी आपका पर्पस है, वॉट एवर यू थिंक इज योर पर्पस इन दिस लाइफ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, तो दैट इज वेयर वी हैव टू गो। एंड कितनी बार है ना, पता ही नहीं चलता कि हम लोग को करना क्या है, हमको चाहिए क्या। फिर लगता है कि यार सोचते हैं व्हाट डू आई वांट, फिर भी नहीं समझ में आता है। तो मैम ने एक बहुत अच्छा शी हैज गिवन अ वेरी नाइस टूल फॉर दिस। शी हैज सेड कि अगर आपको समझ में नहीं आए ना कि आपको क्या पर्पस है, व्हाट डू यू रियली मतलब वांट फॉर योरसेल्फ, कहाँ जाना है लाइफ में, क्या करना है, तो जस्ट फॉलो योर ब्लिस। व्हाट इफ वंदना जी आप अनम्यूट क्यों कर लेते हो बार बार? तो वॉट एवर यू लाइक डूइंग, जहां जहां जो जो चीज करने में आपको ब्लिस फील होती है ना, यू फील आनंद जिसको बोलते हैं हिंदी में एंड इंग्लिश में ब्लिस, वो आप चीज करते जाओ। शी इज जस्ट सेइंग दैट। एंड प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। मैंने वंदना जी को म्यूट किया, वो वापस अनम्यूट कर ले। ओके, या everyone please mute yourself. What I was saying, मेरा क्या ना वो लिंक टूट जाता है, I forget। तो मैम was saying कि अगर कभी ना लाइफ में समझ में नहीं आए कि क्या चीज के लिए हम आए हैं इस लाइफ में, ना कुछ तो पर्पस होता है, तो जस्ट फॉलो योर ब्लिस, डू वॉट एवर यू लाइक डूइंग, डू वॉट एवर यू लव डूइंग, एंड इमीडिएटली ग्रेजुअली धीरे धीरे you will find the purpose of your life। 1 मिनट मैं ना सबको म्यूट कर रही हूँ। यस, एंड धीरे धीरे क्या होता है, अभी जैसे फाउंडेशन ले की हमने, थ्रू दीज मैजिकल प्रैक्टिसेस, ग्रेटिट्यूड के टूल के साथ हम इसमें अब फ्लोर्स ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर ऐड किया, सेकंड फ्लोर ऐड किया, थर्ड फ्लोर ऐड किया, है ना। हमने धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया, ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, मैजिक रॉक कर रहे हैं। यस, फाउंडेशन इज बिल्ट। सिर्फ ग्रेटिट्यूड एंड मैजिक रॉक से, मतलब सुबह की ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक, द फाउंडेशन इज बिल्ट इफ यू आर कंटिन्यूइंग टू डू दैट। वो हमेशा के लिए कंटिन्यू रखना, लाइफ लॉन्ग। वो सिर्फ इस मैजिक बुक के लिए नहीं थी, इट इज फॉर लाइफ लॉन्ग। उसके बाद आप नहाते वक्त अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को, फुल बॉडी को आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। फर्स्ट फ्लोर बन गया आपका। उसके बाद आप 5 एलिमेंट्स को एवरीडे ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, सेकंड फ्लोर बन गया आपका। जब भी आपको लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं, आप तुरंत कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कर लेते हो, थर्ड फ्लोर बन गया आपका। ओके, आप मनी के लिए यू आर ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड। आप उसके जाते समय भी आते समय भी यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। ऑलवेज आप मनी दे भी रहे हो ब्लेस करके, ले भी रहे हो ब्लेस करके। यू आर पेइंग ऑल योर बिल्स एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर योर बिल्स। ओके, 5 तल्ले बन गए आपके। तो इस तरह से हर जगह जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा आपके बिल्डिंग के फ्लोर्स, आपकी लाइफ के फ्लोर्स बनते जा रहे हैं उसी तरह। okay, and you will climb higher and higher, your life will climb higher and higher। उसकी कोई लिमिट नहीं है। इट इज नॉट कि आप 10 ही फ्लोर बना सकते हो अपनी लाइफ के उस बिल्डिंग में, कि आपके पास सिर्फ उतना ही उतना ही दिया है, लिमिट है। नो, you can touch the sky and you can touch the stars। yes, continue। To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Jonas Gartner, 1912-1996, professor, theologian, poet. Yes, The idea this is so nice, है ना? This is so nice
कि आप सिर्फ हम लोग सिर्फ बातें भी कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड की, हाँ मुझे पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, आई थिंक सभी को पता है। इतने फॉरवर्ड्स भी आते हैं, ग्रेटिट्यूड करो, कृतज्ञता दो, ये करो, सबको पता है, एवरीवन इज सेइंग। तो टू स्पीक ओके, इट इज कर्टियस, है ना, सभ्यता है, एटिकेट है, सुनने में भी अच्छा लगता है, इट इज नाइस। इनैक्ट ग्रेटिट्यूड, जब आप इनैक्ट करते हो मतलब कोई चीज में प्रैक्टिस में लाते हो, तो इट इज जेनरस, इट इज नोबल। Yeah, but when you live gratitude, it is to touch heaven. सरिता जी सॉरी, मैं लोगों को म्यूट करने में मेरा टाइम चला। जब आप ग्रेटिट्यूड लिव करते हो, ओके, मतलब इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड। आप अलग से यू आर नॉट ट्राइंग कि ओ चलो आज सुबह उठे हैं, चलो ग्रेटिट्यूड ले लेते हैं, थोड़ा दिन भर में यूज करना है, नहीं। Now it is a part of you. It is already embedded in us. Yes, continue. The ideal way to move forward from here is to Yes, yeah. Maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it as a guide. Yes, एक मिनट। तो अब हम लोगों का काम सिर्फ ये है कि कम से कम फाउंडेशन मेंटेन करके रखना। अब हमने फाउंडेशन का ही ध्यान नहीं दे रहे, है ना, हम धीरे धीरे ब्लेसिंग्स लिखना छोड़ दिए, धीरे धीरे हम मैजिक रॉक छोड़ो ना, अब कौन करेगा, रात में भूल गए, वी आर नॉट डूइंग एनी, मतलब मेन एकदम बेसिक वाली जो प्रैक्टिसेस है, हमने उसी को छोड़ दिया। तो क्या हो रहा है, हमारा फाउंडेशन विल बी शैटर्ड, फाउंडेशन हिलने लगेगी। और अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन अगर वीक हो गई है, तो वो कितने समय तक उसके फ्लोर्स टिके रहेंगे? नहीं टिके रहेंगे ना, बिकॉज फाउंडेशन इज वीक नाउ। सो एटलीस्ट फाउंडेशन को मेंटेन करके रखना है, दैट मीन्स कि ब्लेसिंग्स एंड रॉक कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आपकी वो स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद पिलर्स जो फ्लोर्स हैं, पिलर्स हैं, दैट इज ऑल अपॉन यू, इट्स ओके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम बिल्ड कर लिए, एवरीथिंग इज फाइन, बट फाउंडेशन हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड जितना ज्यादा हम डीपली फॉलो करेंगे ग्रैटिट्यूड, उतना लेस टाइम यू विल नीड टू गिव टू इट, क्योंकि कितना आप टाइम दे रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कितना डीपली यू आर डूइंग, ओनली दैट इज इम्पोर्टेंट। Okay, yes, continue. 3 days a week of Remember the Magic or combining it with 2 other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do Remember the Magic on one day, the magical relationship on the second, and the magic money on the third day. Continue. 4 days a week of Remember the Magic or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. Yes, तो ये बार बार मतलब हर एक पैरा में she is giving you options, हम लोगों को options मिल रहे हैं कि या तो हम 3 दिन Remember the Magic कर लें, उसके बाद 2 दिन कोई भी अपने इच्छा से we can choose any magical practice, कि आज हेल्थ वाला कर लेते हैं एंड नेक्स्ट डे यू आर डूइंग दैट मनी वाला, एनीथिंग व्हाटएवर यू आर चूजिंग, तो वो आपके फाउंडेशन को मेंटेन रखेगा। या फिर अगर आप 4 days a week करते हो रिमेम्बर द मैजिक, दैट इज आज वाला जो एक्सरसाइज है, उसके साथ आप 3 कोई और मैजिक चूज कर रहे हो प्रैक्टिस, तो दैट विल मेंटेन ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेलरेट द मैजिक। उसके बाद क्या ऑप्शन है? यस, 5 days a week of Remember the Magic or incorporating it with the 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. Yes, तो अगर आपके पास मतलब आपको और ज्यादा ग्रैटिट्यूड चाहिए, आपको लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी आई वांट टू टच द स्टार्स, तो 5 days रिमेम्बर द मैजिक करना है एंड बाकी
कोई भी 4 अदर मैजिकल प्रैक्टिसेस आपके मन का, ठीक है? यस, और द लास्ट वन इज 6 or 7 days a week of remember the magic, or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. यस, तो ये पहले भी आया था ना, एल्केमिस्ट। तो अगर आप 6 या 7 डेज रिमेम्बर द मैजिक वाली प्रैक्टिस करते हैं, और या फिर उसके साथ कुछ और मिक्स कर कोई भी मैजिकल प्रैक्टिस करते हैं, यू आर गोइंग टू बिकम अ ट्रू एल्केमिस्ट हु कैन टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड। मैजिक प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस, ये ना को पढ़नी, ये वाली है। जैसे सपोज ये ना लास्ट में आपके पास, सबके पास बुक ऑलमोस्ट आई थिंक सभी के पास आ गई है ना, जिसके पास भी नहीं आई है अभी तक, इफ यू हैव नॉट बॉट, तो प्लीज बाय द बुक। बुक आपके पास होनी चाहिए। आप बार बार पीडीएफ में जाकर कहाँ से चेक करोगे कि हाँ आज मुझे क्या करना है ना? और वो क्या पता बुक सामने दिख जाए और आपको याद आ जाए कि अरे हाँ ना, मैजिक तो मैं कहीं शायद भूल गई हूँ एंड मुझे वापस उसको करना है। तो सपोज रिलेशनशिप्स का कुछ भी ऐसा आपको चैलेंज आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, आप उसको और बहुत ज्यादा उसमें मैजिक लाना चाहते हो रिलेशनशिप्स में, तो ये इतने सारे चैप्टर्स यहाँ पे उन्होंने अपने आप लिख दिए पीछे में ना, बुक के पीछे में ये पूरा एक वो बना हुआ है, एवरीथिंग फॉर योर वो। अगर रिलेशनशिप्स को और डीप करना है और मैजिक लानी है, तो रिलेशनशिप्स का एक चैप्टर था, मैजिक डस्ट का एक चैप्टर था, हील वाला एक और चैप्टर था जिसमें 10 पॉइंट्स लिखा था हमने, मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस है वो भी रिलेशनशिप्स के लिए है, मैजिक मिरर है दैट इज ऑल्सो फॉर रिलेशनशिप्स, है ना? हमने कल मैजिक मिरर किया था और हमें क्या लगा था कि वो हमारे लिए है, सिर्फ खुद को बूस्ट करने, खुद की कॉन्फिडेंस बढ़ाने, खुद से प्यार बढ़ाने के लिए, बट उसमें क्या डेप्थ छुपी हुई है ना उस प्रैक्टिस में कि वी डोंट नो। अगर हम खुद के साथ बहुत ऑनेस्ट हैं, खुद के साथ सच बोल रहे हैं, खुद को प्यार कर रहे हैं, खुद के साथ सारी गिल्ट सारे कुछ गायब हो गए, तो हमारे सारे रिलेशनशिप्स है ना, वहां पर भी आप देखोगे एक डिफरेंट मैजिक आ रही है, एक डिफरेंट मैजिक, बिकॉज जो हम खुद के साथ फील कर रहे थे उसकी परछाई हमारे रिश्तों पर भी पड़ रही थी। यस और नो, होता है ना ऐसा? whatever we feel inside for us, it reflects on our relationships. वहां पर जाकर कुछ ना कुछ वो परछाई उसकी पड़ी जाती है। तो relationships के लिए magic mirror is also very important, and remember the magic तो हर दिन every day करना ही करना है। yes, अब suppose किसी को लगता है कि मुझे health पर बहुत ध्यान देना है, तो magical health हमारा फर्स्ट चैप्टर था, डे 4 आई थिंक, यस। उसके बाद मैजिक डस्ट में हम हेल्थ के लिए, एवरीवन हेल्थ के लिए आप लोग एनी टाइम मैजिक डस्ट यूज कर सकते हो। फिर एक और चैप्टर आया था मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, जिसमें हमने फोकस ग्रैटिट्यूड किया था, आइडियल स्टेट को इमेजिन किया था। मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, ये वाला जो चैप्टर है ना, दिस इज ऑल्सो फॉर आवर हेल्थ। मैजिक वॉन्ड तो है ही, यस, एंड अगेन रिमेम्बर द मैजिक। उसके बाद मनी के एरिया में एवरीबडी नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है? आई नो, मतलब वी थिंक कि हाँ सब कुछ है, यू नो, मनी कांट बाई एवरीथिंग, दिस दैट, बट स्टिल मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत जरूरी होता है। अगर ये एरिया भरा हुआ रहता है ना हमारा, अगर दिस एरिया इज फुलफिल्ड ना, इनफ रहता है, then we can move forward in the quest of life. अगर हम यू नो बेसिक नेसेसिटीज में ही उलझे हुए रहते हैं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो दिस एरिया, अगर आपको मनी के एरिया में अबंडेंस चाहिए, अबंडेंस एंड अबंडेंस, मैजिक मनी हमने किया था जिसमें पास्ट के लिए ये आप चैप्टर बार बार कर सकते हो, बार बार, कितनी बार में ना, फर्स्ट बार में आपको जरूरी नहीं है हर एक चीज याद आई थी। द मेडिटेशन विच वी डिड, उसमें तो मैंने कुछ कुछ खाली पॉइंट्स ट्राई कर दिए थे छूने के, बट कितने कुछ है हमारे पास्ट में जिसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड देना है, तो वो आप कर सकते हो। मनी मैग्नेट कर सकते हो, मैजिक चेक जब रियलाइज हुआ, यू कैन डू इट अनदर,
मैजिक वॉन्ड मनी के लिए भी है, मैजिक मिरर, नाउ सी, अब यहाँ पर क्या रिडल है, व्हाट इज दिस रिडल, मनी का बात हो रहा है एंड वहां पर भी मैजिक मिरर है, रिमेम्बर द मैजिक तो हर दिन है, वहां पर भी मैजिक मिरर है, करियर में, कोई भी हमारे प्रोफेशन में, कोई हमारे सपोज हाउस वर्क में ही, एनीथिंग में, तो वर्क्स लाइक मैजिक, रिमेम्बर इनविजिबल मैनेजर, याद है सबको, मिस्टर इंडिया, है ना? Yes. तो जब आपको याद आए ना, लगे अरे हाँ 2-3 कुछ बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज सुबह में इनविजिबल मैनेजर को लगा लेते हैं काम पर, आज उसको काम दे दो, बहुत दिन से वो खाली बैठा है, तो यू कैन डू दैट, मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड, मैजिक मिरर, रिमेम्बर द मैजिक। तो मैजिक मिरर तो हम लोगों को कभी नहीं छोड़ना है, हमारे डिजायर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे डिजायर्स हैं, जो हमने लिखा हुआ है, आप उनको एवरीडे पढ़ रहे हो कि नहीं? सिर्फ 2 लोगों का विजन बोर्ड आया मेरे पास, पूनम जी एंड रितु जी का, बाकी लोगों के विजन बोर्ड्स कहाँ हैं? आर यू वर्किंग फॉर इट? क्या आप अपने ड्रीम्स बार बार पढ़ते हो? क्या आप उनको पावर दे रहे हो? तो मैजिक डस्ट एवरीवन, मतलब ये डिजायर्स के लिए भी है, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, डिजायर्स के लिए है, कैसे विजुअलाइजेशन करना है, बिफोर योर वेरी आईज, मैजिक वॉन्ड, मैजिक मिरर, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मैजिक मिरर इज आल्सो फॉर आवर डिजायर्स एंड ड्रीम्स। तो मैजिक मिरर तो हम अब कंटिन्यू रखेंगे, रिमेम्बर द मैजिक एंड आवर मैजिक रॉक, ये जो मैजिक रॉक हम सबका है ना, यूनिक स्पेशल, उसको मतलब उसमें इतनी ज्यादा मैजिक भर देनी है, उसमें इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड भर देना है, you can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you are grateful for. तो कितनी बार होता है, सपोज कोई ऐसे हैं अगर वर्किंग है, वो सुबह जाते हैं या रात में आते हैं या फिर बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो वो अपने साथ अपना मैजिक रॉक रख सकते हो, ये उन्होंने एक तो एक्स्ट्रा टिप दी है ना, बार बार सपोज आप बैग में हाथ डाल रहे हो, मनी निकाल रहे हो, कुछ भी निकालते हो, बाहर ही ज्यादा रहते हो, तो जितनी बार आपके हाथ में वो मैजिक रॉक आपने टच किया, ओ इट्स टाइम टू पे ग्रैटिट्यूड। ओके, इसमें पता है एक जन ना, एक पार्टिसिपेंट ने एक बार शेयर किया था कि जैसे उन्होंने अपने मोबाइल में हर 1 घंटे का अलार्म लगा रखा है, हर 1 घंटे पर वो अलार्म बजता है, एक रिमाइंडर टाइप का कुछ ऐसा है, एंड दैट इज अ रिमाइंडर फॉर हर कि मुझे कुछ किसी न किसी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, तो उन्होंने ये वाला अपना स्ट्रक्चर बनाया था। तो अकॉर्डिंगली ना वी कैन मेक आवर ओन स्ट्रक्चर्स, हम लोगों को अपना एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, ये नहीं आज ये याद आ गया तो ये कर लिया, अरे कल याद आ गया मैजिक रॉक करना है, कल कर लिया, परसों कुछ और याद आ गया, ऐसे नहीं होगा। इफ यू मेक अ स्ट्रक्चर ना, मुझे मॉर्निंग में मैजिक फुटस्टेप्स करने ही है एवरीडे, है ना, मैं मॉर्निंग में जैसे ही मैं बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगी, आई विल डू माई 5 एलिमेंट्स ग्रैटिट्यूड, आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, देन ओनली इट विल बी फॉलोड, अदरवाइज बस वो गोल गोल घूमते रहेंगे बस। एंड मैजिक डस्ट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, या सरिता जी पढ़िए ना प्लीज। You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your email or your mail before you open them.
your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. Yes. तो इसके एप्लीकेशंस अगर लिमिटेड हैं तो वो खाली हमारे इमेजिनेशन से लिमिटेड है। वो वाली फील नहीं आ रही है। वो आप लोगों ने वो फ्रोजन मूवी देखी है? फ्रोजन, मतलब वो लड़की है ना, ऐसे हाथ ऐसे करती है, उसके हाथ से पूरे बर्फ बर्फ निकलती है ना, Yes, एवरीथिंग yes. बिकम्स, वो हर कुछ दो सिस्टर्स process- रहती है वो लोग. हाँ, आना एंड एल्सा। Elsa. यस, तो व्हाटएवर, मतलब यू विल फील एज इफ सच में यू आर अ ट्रू मैजिशियन। आप गार्डन में अपने टहल रहे हो एंड यू कैन जस्ट स्प्रिंकल मैजिक डस्ट जहां जहां पर आपको लग रहा है प्लांट्स आर स्ट्रगलिंग, आपने उनको खूब सारा मैजिक डस्ट दिया। कितनी बार आप देखोगे तुलसी का पत्ता आप देख रहे हो, थोड़ा सा मुरझा रहे हैं, थोड़े सूख रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रैटिट्यूड एंड लव चाहिए। आप पानी कितना भी दे रहे हो, कम बेसी जो भी, पर ग्रैटिट्यूड और लव नहीं दे रहे हो। ओके, सो वहां पर मैजिक डस्ट दे दिया। कहीं भी आप डॉक्टर के बैठे हो एंड यू आर सीइंग सम बेबी, बहुत ज्यादा रो रहे हैं बच्चे, कोई बहुत छोटे बच्चे एंड दे आर क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, तुरंत वहां पर मैजिक डस्ट दे दिया। किसी अननोन पर्सन को भी देख रहे हो जिसका मूड बहुत खराब है, मैजिक डस्ट दे दिया। अपने ही घर वालों पर एवरी टाइम यू आर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट, अपनी हर चीज पर यू आर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट। इट इज लाइक कि यू, मतलब वी हैव नाउ मैजिक इन आवर हैंड्स। हाथ ऐसे किया एंड मैजिक निकल रहा है, स्प्रिंकल हो रहा है, मैजिक डस्ट इज विद इन अस। तो इट इज नॉट ओनली फॉर पीपल हु सर्व अस, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, एवरीवेयर। You had seen na in all the practices, अभी जो पहले list table आया था, magic dust was there everywhere. Yes, yes, the magic never ends. This we will start tomorrow and it will take, I think, just कल थोड़ा सा टाइम लगेगा। We will see कि magic को कैसे continue करना है in our lives. And thus we will take everyone's takeaways. We will discuss everyone's takeaways कि what are they going to take from this session. ऐसी क्या चीजें हैं जो they will continue, वो लेकर जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर हमने अच्छी बात सीखी, that is everything is fine, but whatever they will continue doing, that we will discuss tomorrow individually. Yes. So I think today it was very easy. Still, if there is any doubt in remember the magic practice, किसी को कोई doubt है? Any questions? मुझे कुछ शेयर करना है। हाँ, बोलिए। कल मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ था, तो सब कोई बहुत टेंशन में थे, तो आई स्टार्टेड मैजिक डस्ट और 1 आवर के बाद हम अच्छी खबर मिल गई। अरे बाबा, आई वॉज सो हैप्पी और 1 मिनट के लिए भी कुछ नेगेटिव मेरे अंदर नहीं आया। सबको ये वाला पॉजिटिव ही सोचिए, सब अच्छा ही होगा। wow, beautiful, very nice, Vandana ji, and such a powerful sharing. Thank you for sharing. you very much. Yes, and keep continuing this. Believe in the Yeah, I power will. of magic dust. Yeah. मतलब ये हम लोगों को लग रहा है ना कि कोई फिल्मी बात है, फैंटेसी की बात है, मैजिक ये डस्ट। कल बहुत ऐसा था, but it was miracle. I think it was a miracle. Very true. Thank you for so much. Thank you so much for sharing. Yes. Let's do a gratitude prayer first. Yes, thank you so much, Varsha. Chalo. Yes, so everyone, any sharings, any questions? We have 3 to 4 minutes.
भी फिर से एक बार बोलो, थैंक यू 3 टाइम्स क्यों बोलना है, उसका मतलब फिर से एक बार बोलो। थैंक यू 3 टाइम्स। थैंक यू का जो 3 टाइम्स है, दिस इज द पावर ऑफ क्रिएशन। whenever we want to create anything, we have to use something 3 times. तो यहाँ पर क्योंकि हम लोगों को अपने ड्रीम्स क्रिएट करने हैं, यहाँ पर तो ये मेरी आवाज है। Why is my echoing? Hello. Yes, now it's better. Yeah. So मतलब यहाँ पर तो हम अपनी ड्रीम्स क्रिएट कर रहे हैं ना, कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं, वी आर मतलब गिविंग इट क्रिएशन प्रोसेस है वो पूरी। विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन बोल लो इसको, जो भी बोल दो। तो यहाँ पर 3 टाइम्स थैंक यू का एक बहुत पावरफुल मीनिंग है। 3 इज अ पावरफुल नंबर, इट इज अ मैजिकल नंबर। इसका एक मैजिक है इसके अंदर, इट इज अ समथिंग पावरफुल। सपोज हमने अपने गॉड्स भी देखे हैं, इट इज ऑलवेज ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, त्रिदेव। या तो ट्रिनिटी होती है, ट्रिनिटी की पावर 3। जैसे अगर हम लॉ ऑफ यूनिवर्स सोचें तो मतलब वन मैन वन वुमन एंड दे टुगेदर क्रिएटेड वन चाइल्ड विच मेड देम कंप्लीट, एक सर्कल कंप्लीट हुआ। ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ 3। So before writing any of your dreams, you have to always write 3 times thank you, so that you are giving the power to it to come in creation, start its process of creation. Okay? Yeah. Thank you. Thank you. Yes, anything else? Anyone? सुवर्णा जी, what is this concentrated gratitude जो आपने बताया कि 5 flows जो हम करते हैं? Concentrated मतलब suppose morning में whatever we are writing ना, they are scattered gratitude, they are general gratitude. Okay? उसमें आप we are giving to our parents, we are giving to in general जो आपको आज याद आ रहा है। कभी suppose आपने nature के लिए दे दिया, कभी आपने कुछ कल ऐसा हुआ उसके लिए दे दिया, कभी फ्रेंड्स को दे दिया, कभी कोई फैमिली मेंबर को, है ना। This is called general gratitude. बट सपोज मुझे हेल्थ के एरिया में ज्यादा मैजिक चाहिए, आई वांट टू गेट हेल्थ में बहुत ज्यादा मैजिक। तो व्हाट आई विल डू कि मैंने अपने 10 आई हैव रिटन माय 10 जनरल ब्लेसिंग्स जो मैं रोज लिखती हूँ। उसके अलावा आई विल राइट 10 gratitudes only and only for my health. That is called focused gratitude or concentrated gratitude. कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हेल्थ में। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई स्ट्रॉन्ग हैंड्स बिकॉज आई डू एवरी डे माई ऑल डे वर्क विद देम। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई स्ट्रॉन्ग नीज एंड लेग्स क्योंकि वो पूरा दिन मुझे चलने में हेल्प करते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल माई बोन्स एंड मसल्स because it has given me strength and support. I'm so grateful for my immune system because I'm so grateful for my antibodies. I'm so grateful for my good hair and skin. ऐसे करके आपने जो आपके पूरा हेल्थ के लिए फोकस्ड ग्रैटिट्यूड दे दिया। Suppose similarly you can do the same thing in relationships. You want कि एक कोई ऐसा एरिया है जहां पर आपको बहुत ज्यादा मैजिक चाहिए in your relationship. तो आपने उस एरिया में इतना ज्यादा डाल दिया ग्रैटिट्यूड। 10 focused gratitude only on that relationship, only on the husband, only on the child, only on that sister, only on that friend, only on that whatever. This is called concentrated gratitude. So the same points अगर जैसे हमें health के लिए चाहिए तो we have to write the same 10 points every day or we should keep on changing like 10 body parts फिर next day 10 उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम होने चाहिए एवरी डे, बट आप हेल्थ से ही रिलेटेड सेम मतलब लिख रहे हो, देन आल्सो इट इज कंसंट्रेटेड। ये जर्नल में भी नहीं लिख सकते खाली? क्या चीज? जर्नल में ही खाली अगर रोज के लिए हेल्थ के लिए लिख दे तो चलेगा? हाँ, जर्नल में, ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखती हूँ।
आपका जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है उसमें आपने एवरी डे के 10 ब्लेसिंग्स तो लिखे ही है ना, उसी में यू कैन राइट 10 मोर फॉर योर हेल्थ, उसी में यू कैन राइट 10 मोर फॉर योर रिलेशनशिप, है ना। रोज अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, जब अगर कोई जरूरत हो, अगर जिस चीज में, जब हमेशा कोई कभी चैलेंजेस जैसे आए करके, जैसे आज हेल्थ का है। तो रोज आप सेम लिखते हो क्या जनरल ब्लेसिंग्स? नहीं ना, डिफरेंट होते हैं ना। उसके अलावा जैसे आपको आज हेल्थ में चाहिए, तो आपने अब 10 ठो हेल्थ के लिए भी लिखा, दैट इज ओनली फॉर हेल्थ। ओके, वो जरूरी नहीं है कि आपको फिर रोज सेम हेल्थ के लिए ही लिखना है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। But as I write every day since the day I started this magic book session, I'm writing every day for my health. Like one concentrated gratitude is always there for my health. One मतलब 10 ना, 10 out of 10, 1 is there for health. Out of 10, 1 is there. मतलब जैसे हम जो 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं रोज सुबह, मिनिमम जो 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसमें से एक ब्लेसिंग मेरे हेल्थ के लिए है ही है उसमें। Same I do हाँ, also. Yes, that is the fine. Yeah. Yeah, so she was asking that only. Can we write daily for health? Oh, yes, obviously you can write daily for your health. उसमें आप चेंज करते रहो, don't write every day just for your legs. आप उसमें चेंज, हेयर, कभी आईज, कभी कुछ, बिकॉज हेल्थ में तो अनलिमिटेड चीजें अनलिमिटेड, ना, कभी इंटरनल ऑर्गन्स, यस इंटरनल ऑर्गन्स, कभी बाहर के सेंस ऑर्गन्स, है ना। तो या हार्मोन्स, एंजाइम्स, देयर आर मेनी थिंग्स, पूरी साइंस आ जाएगी इसमें। यस एक दिन जॉइंट्स, मुझे याद आया नहाते समय कि मैं एवरी डे आई एम गिविंग टू एवरीथिंग, मैंने जॉइंट्स तो भूल ही गए। जॉइंट्स के कारण कितना मतलब इजी है ना, एवरी बॉडी पार्ट इज फंक्शनिंग, या फ्लेक्सिबिलिटी है। जॉइंट्स अगर काम बंद कर दे ठीक करना तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे जॉइंट्स याद आया। फिर एक दिन मैंने सोचा अरे मैं सब कुछ कर रही हूँ, टीथ तो मैं भूल ही गई थी, टीथ पे ध्यान नहीं दिया, देन आई एडेड टीथ। तो एवरी डे कुछ ना कुछ, मतलब इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिंसियर प्रैक्टिशनर, फिर भी कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। जॉस, मतलब अगर आप सिर्फ यहाँ तक का पार्ट लो ना, सिर्फ फेस तक का, यहाँ तक का, तो ही कितनी चीजें हैं। आईब्रोज आ जाएंगे अगर आप डिटेल्ड में करते हो तो, ओके, आईब्रोज आ जाएंगे, आई लैशेस आ जाएंगे, आईज आ जाएंगे, नोज आ जाएगा, जॉज आ जाएगा, टीथ आ जाएगा, चिन आ जाएगा, जस्ट इमेजिन। तो ये हो गया डेप्थ में, बट यू कैन जस्ट डू नॉर्मल बॉडी पार्ट्स, नॉर्मल इंटरनल ऑर्गन्स। और कभी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है ना, आज आप बहुत लग्जरी बात ले रहे हो, देन तब बाकी चीजें भी याद कर लो, डिटेल्ड वाली चीजें। Yes, anything else? And मनी का जब भी बिल आए तो we have to write thank you paid, we have to be very grateful, then give the money. Yeah, I do every day जब भी, क्योंकि मैं ही लाती हूँ सब, तो थैंक यू पेड जो हम लिखते हैं वो सेम डे वी शुड नॉट थ्रो द नेक्स्ट डे। या आज उसमें अपने ग्रैटिट्यूड दिए तो उसको कल फेंक देते हैं। ओके, हाँ, that's what I keep it. मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूंगी। Yes. मुझे पूछना है। I want to ask something. Yes. जैसे मेरा जैसे बुटीक है तो उसमें मैं बिल बनाती हूँ, तो when I receive the money, तो what should I write on the Xerox copy? मतलब उसमें क्या लिखना चाहिए? Thank you paid तो हम नहीं लिखेंगे तब। नहीं, आप तो बिल बना रहे हो कस्टमर के लिए ना, राइट, तो उसमें आपको थैंक यू पेड या कुछ भी नहीं लिखना है। आइदर यू कैन जस्ट राइट थैंक यू, वो इसमें दिया हुआ नहीं है फॉर द बिल्स यू आर रिसीविंग, नो, इट इज ओनली फॉर द बिल्स वी आर पेइंग। तो जो मनी आपको मिल रहा है ना, जहां पर भी आप उसको रख रहे हो, सपोज आप जब भी कोई ड्रॉर में रख रहे हो, कोई लॉकर में रख रहे हो, कोई बैग में, उसको बहुत ज्यादा ब्लेस करके, थैंक करके ही यू विल कीप इट देयर। ओके, ये करना है। कभी भी डिसअरेंज्ड वे में कि आपने किसी ने पैसे दिए बस एक बार ऐसे ही घुसा दिया, नहीं। आप देखोगे बहुत बार आप देखोगे कि सामने वाला शॉपकीपर, जब हम कहीं जाते हैं ना, वो बहुत ध्यान से उसको रख रहे हैं। हम लोगों को गुस्सा आता रहता है, अरे जल्दी करो, मतलब इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप, बट वो सामने वाला अपना पूरा टाइम लगाकर मनी ठीक से रखता है। यस, एंड यू हैव मस्ट नोटिस्ड मेनी
many people. तो just because कि customer को हड़बड़ी हो रही है, तो just don't throw money in your box. Keep it properly. Okay, दी. With respect. आप अपने बिजनेस के लिए ना, आप एक मिनट, हाँ, जैसे फॉर योर बुटीक, फॉर योर बिजनेस, आप अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, यू कैन डू फोकस्ड ग्रैटिट्यूड. तुम्हारा जहाँ बुटीक है, बुटीक के लिए किसने बनवाया था, कैसे, कुछ किसी से अगर हेल्प मिली थी, जो कस्टमर्स ऑलरेडी हैं, जो वहां पर फर्नीचर है, एवरीथिंग, उसमें हर कुछ इंक्लूड कर लो इन दैट ग्रैटिट्यूड. ओके Okay, दी. हाँ, yes, Varsha. Before 2-3 classes, you were saying that there's something called 5 steps. You told, I don't remember. हाँ, कि मैंने आपने बोला था कि लिखाया आप ये था ना. 5 steps नहीं. हाँ, मैंने लिखवा दिया था 5 steps of manifesting. I think you were not there that day. Yes, बताया था. Reading, writing, listening, visualization. Okay. Yes. So it's writing, listening, visualization, and writing, reading, what again? Listening, speaking, writing. एक मिनट, Yes. मेरे बुक में लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ. अच्छा. Okay. Yeah, there is writing, talking, recording, reading, and visualization. No. Recording इसमें नहीं आई. Recording is something else. Recording तो मतलब सुन के. Okay. लिख के, बोल के, सुन के, देख कर, and visualize करके. By written down, by telling everyone, by listening affirmation by yourself, be seeing vision board, or by visualizing. Perfect. The first step is writing down. Second step is उसको आप Telling सुन everyone. रहे हो, बोल रहे हो सबको, बार आप उसको रीड कर रहे हो, जोर से बोल रहे हो किसी को भी, उसके बाद सुन रहे हो. तो how will you listen? या तो आप उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हो, then you can listen to it every day, है ना. बार आप उसको, या तो स्पेशली रात में सोने से पहले, if you are listening to it. उसके बाद विजन बोर्ड में उसकी इमेज देखकर, अगर विजन बोर्ड नहीं भी है, you have just its image on your computer, on your mobile, but you are seeing it every time. And the last is visualization. Okay. yes. Thank you so much. Thank you, Sarita ji. Thank you, Anusha ji. Yeah. Thank you so much for explaining everything us in detail. And Yeah. Chalo, thank you. And bye-bye, everyone. Have a great day. The one thing आप Michael Jackson का एक song आप send करने वाले थे. Yes. चलो मैं share करती हूँ. Yes. Okay, A Man in the Mirror. Bye everyone. Bye-bye. bye. Thank you so much. सुवर्णा दी, I have a question. हाँ बोलिए. एक आपने चेक का बोला था ना, I was doing it for advance which I have paid for the car, that was about 10,000. मैंने वो चेक तो रख दिया है, अभी तक वो हमारा फोन नहीं उठा रहे और पैसा भी वापस नहीं कर रहे, तो इसके अलावा मैं और क्या करती हूँ? कौन फोन नहीं उठा रहा है? कौन? हमने एक एडवांस दिया था कार बाई करने के लिए, 10,000 एडवांस. अच्छा. उसका almost 5 months हो गया and he is not responding and he is not giving the money back also. तो इसमें मैजिक चेक कहाँ से आया? You were telling ना, आप जो सोच के वो चेक लिख सकते हैं. नहीं. मैजिक चेक इसलिए है कि हम लोगों को कोई ऐसी चीज चाहिए उससे, या हम लोगों को कोई ऐसी चीज के लिए पैसे देने हैं. इट इज नॉट यूज्ड कि आपके कहीं पैसे रुके हुए हैं, उसके लिए आप मैजिक चेक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपका शिखा म्यूट योरसेल्फ. Oh sorry. या क्योंकि वहां पर ना आपकी लव की फीलिंग नहीं आ रही है जब आप चेक को देख रहे हो. ओके. तो वो चीज कभी नहीं मिलेगी, कभी पूरी नहीं होगी आपकी चेक से. तो कैसे यूज फॉर, हाँ मतलब ऑल दिस, जहाँ पर
आपको वहां पर जो भी आपको करना है चेक नहीं करना है. You have to write gratitude for that person. You have to focus gratitude. You have to visualize as if that person is calling you. वहां पर वो सब चीजें करनी है, not magic check. Okay. Okay. Yes. चलो, I got thanks. It's okay. It's okay. Thank you. You clarified. yeah. मुझे क्वेश्चन आंसर चाहिए था. हेलो. हम कल बात करें. 4:15 हो गए. I have to ओके go. ओके कल ओके. पक्का से, हाँ, सुबह शुरू में. Yes. Thank you. Thank you for Bye. having patience. Bye. Bye bye.